آج کا موضوع جی بڑا خاص ہے. یہ وہ ایک رشتہ ہے جس رشتے سے کائنات کا آغاز ہوا. کائنات کا پہلا رشتہ کہہ لیں آپ. اور ہر گھر میں، ہر فیملی میں اسی رشتے کے ساتھ جو ہے وہ پورے خاندان چلتے ہیں، پوری زندگیاں چلتی ہیں. رشتہ ازدواج. تو آج اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. محمود بھائی، رشتہ ازدواج جیسے کہ ہم بات کریں، بریک پہ بھی ہم نے اسی موضوع کے حوالے سے کافی باتیں کی، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا روشنی ڈالیں اور ہماری جی، رہنمائی بسم فرمائیں. اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. نیچر کو انسان، جو بھی انسان کی نیچر ہے اس کو کور کرتا ہے اسلام. اللہ رب العزت نے بھی فطرت کی ہی بات کی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. تو جب انسان اس دنیا میں آیا تو آنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو انسان کی تخلیق کا راستہ چنا وہ بھی فطرت کے بہت قریب ہے، بلکہ وہ ہے ہی فطرت. بے شک. وہ ہے ہی فطرت. تو اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو وہ ایک جان سے پیدا فرمایا. خالقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا فرمایا. جب انسان پیدا ہو گیا تو پھر انسان دنیا میں آ کر مانوس نہیں تھا، کسی سے مانوس نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے انسان کی انسیت کے لیے، مرد کی انسیت کے لیے جوڑا بنایا، عورت کو تخلیق کیا، انسان کا دل لگنے لگا. لیکن یہاں پر یہ بات بلال بھائی بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ رب العزت نے یہ جو تعلق بنایا ہے، یہ جو رشتہ بنایا ہے، یہ حلال رشتہ ہے، یہ حرام رشتہ نہیں ہے، حلال رشتہ. اللہ رب العزت نے چونکہ دین اسلام کو دین فطرت بنایا ہے تو فطرت ضرور چاہتی تھی کہ کسی کی طرف متوجہ ہو. چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ ہم نے شہوات انسان کے اندر مزین کر دی ہے. انسان چاہتا ہے، انسان متوجہ ہوتا ہے، انسان اٹریکٹ ہوتا ہے عورت کی طرف، خاتون کی، صنف مخالف کی طرف، جنس مخالف کی طرف. اب چونکہ انسان کے دل کے اندر، انسان کے وجود کے اندر، انسان کے جذبات کے اندر اٹریکشن موجود تھی تو اللہ رب العزت نے اس کو سیدھی راہ عطا فرما دی ہے، صحیح ڈائریکشن عطا فرما دی ہے، بالکل. صحیح سمت عطا فرما دی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. اور وہ رشتہ ازدواج ہے، رشتہ نکاح ہے. بہت خوب. سیدنا آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا. اور بڑی عجیب بات، سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب نکاح ہوا تو حق مہر آقا علیہ السلام پر درود و سلام مقرر کیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی نسل انسانی اگر چلی ہے، نسل انسانی اگر چلی ہے اور سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر کہلائے ہیں اور حضرت حوا ام البشر کہلائی ہیں، تو اس کے پیچھے راز بھی ذات مصطفیٰ ہے یا اہل بیت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہے، حضور کا خانوادہ ہے، حضور کا گھر ہے، آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں. اس کائنات کا راز آقا علیہ السلام کی ذات ہے، ذات مبارکہ ہے. پھر بلال بھائی، اللہ رب العزت نے انسان پر یہ کرم کیا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کو سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا، سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا. اس کی طبیعت میں بے چینی تھی، اضطراری تھی. اس کی طبیعت میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چاہت تھی کہ میں کسی چیز کو پالوں. وہ نئے سے نئے کی تلاش میں تھا. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو چیزوں کے ذریعے انسان کے دل میں اطمینان اور سکون رکھ دیا. ایک کس کے ذریعے؟ فرمایا بندے، مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث قرار دے دیا. یعنی انسان تھکا ماندہ، ہارا، پریشان، دکھی باہر سے آتا ہے اور آ کر اس کو گھر میں اگر تسکین نصیب ہوتی ہے، اگر سکون نصیب ہوتا ہے، اگر اطمینان نصیب ہوتا ہے تو وہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس اور زوجہ محترمہ کو اپنے شوہر کے پاس. بالکل بالکل. ایک یہ چیز ہے. اور دوسرا فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو یا تو تمہیں حلال رشتوں میں سکون نصیب ہوگا یا پھر تمہیں
अल्लाह के जिक्र में सुकून बेशक, नसीब होगा। बेशक, बेशक। तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रहे, तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। ये दो ताल्लुक हैं बिलाल भाई जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज के इंसान में नफ्सा नफसी का जो आलम है, आज का इंसान जो अल्लाह को भूल चुका है। ये रमज़ान का महीना आता है, थोड़ा माहौल बनता है और आप इतने खूबसूरत टॉपिक्स लेकर आते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, इस चैनल को सलामत रखे। ये जो टॉपिक्स हैं ये डिस्कस होने चाहिए कि इंसान को, जो मर्द को जो औरत के साथ जोड़ा गया है और औरत को जो मर्द के साथ जोड़ा गया है, इसके मकासद क्या हैं, इसके पीछे राज क्या है, क्यों जोड़ा गया है। लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हारी तस्कीन हो, तुम्हें दिली तौर पर तस्कीन नसीब हो, इत्मीनान नसीब हो। और ये इत्मीनान तब ही नसीब होगा जब बंदे के दिल में खालसियत आ जाए, उसके दिल में ईमान आ जाए, उसका ताल्लुक मौला से जुड़ जाए, उसका ताल्लुक आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से जुड़ जाए, उसका ताल्लुक हुजूर की अहले बैते अतहार के साथ जुड़ जाए और फिर उनकी सीयर पर अमल करना शुरू कर दे। देखिए जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि वो खूबसूरत जोड़ा जो कायनात का हुस्न था, जो कायनात की खूबसूरती थी और है और क़यामत तक नमूना रहेगा, क़यामत तक नमूना रहेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी तरफ अल्लामा साहब ने इशारा किया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह कद अमरनी अन उज़व्विजा फातिमाता अलीजन, कि अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फातिमा की शादी अली से कर दूं। तो देखिए जो अमर और जो काम आका अलैहिस्सलाम ने सर अंजाम दिया और अपनी बेटी के, आका अलैहिस्सलाम एक दफ़ा तशरीफ़ लाए, सहाबा कराम आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। एक सहाबी ने आका अलैहिस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात से पूछा कि आका अलैहिस्सलाम के दिन और रात कैसे हैं, तो उन्होंने बता दिए। तो सहाबियों ने आपस में बैठकर सहाबा ने फैसला किया, किसी ने कहा अब मैं हर वक्त नमाज पढ़ूंगा, किसी ने कहा मैं हर वक्त रोज़ा रखूंगा, किसी ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। इतने में ये बातें हो रही थी कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा देखो, इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाह, मैं तुम्हारे अंदर अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, व अतकाकुम, और सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं, व उसूमु व उफ्तिरु, मैं रोजा रखता भी हूं, इफ्तार भी करता हूं, व उसल्ली व अरकुदु, मैं नमाज पढ़ता भी हूं, आराम भी करता हूं, आराम भी करता हूं, नींद भी पूरी करता हूं, और देखो मैं शादियां भी करता हूं, मेरा औरतों के साथ भी ताल्लुक है, मैं शादी भी करता हूं। तो ये वो बुनियादी सुन्नत है आका अलैहिस्सलाम की जो बड़ी फितरत के करीब है, फितरत के करीब है। तो आका अलैहिस्सलाम ने साथ ही फरमाया, मन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो हम में से ही नहीं है, वो हम में से ही नहीं है। तो फिर इस सुन्नत के साथ जुड़ने से हम फितरत के करीब होते हैं। बहुत खूब फरमाया आपने मसूद साहब। इसी बात को मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ाएं, आज की जनरेशन के लिए एक अच्छा सा पैगाम, एडवाइस। तो आपने अपनी बेगम का पता किया है, इजहार किया है, तो मैं भी शुक्रिया अदा कर दूं। व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल इन कोविड, तो शी केयर्ड मी अ लॉट, बहुत ज़्यादा उसने खुद उतर के उसने मेरी केयर की और फिर आज मैं आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहें। तो अर्ज़ जो करना चाहता हूँ, जो मौजू चल रहा था हमारा, नौजवान नस्ल को हम पैगाम जो देना चाह रहे हैं, एक बड़ी राज की बात है बिलाल भाई, जो मैं आपके वसीले से और इस चैनल के वसीले से लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि मैं पहले पाँव पे खड़ा हो लूँ फिर शादी करूँगा, पहले मैं ज़रा सेटल डाउन हो जाऊँ फिर शादी करूँगा। ये कॉन्सेप्ट भी टोटली इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आप सेटल डाउन होते होते, आप कह रहे थे ना कि नौजवानों को पैगाम, तो शादी के लिए पहले नौजवान रहें तो सही, क्या जब शादी करें जब बुढ़ापा आ जाए तो फिर क्या फायदा। ये भी सही फरमाया आपने जी। तो नौजवान रहते ही नहीं है बेचारे, वो 30-35 की शादी, फिर क्या शादी रही, फिर आखिरी 5-10 साल ही बचते हैं। तो मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो राज अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके पास अगरचे आपके नसीबों में हो सकता है रिज़्क़ कम हो, लेकिन आप जिसके साथ रिश्ता इज़्दवाज में बंधने जा रहे हैं, हो सकता है कि उसके रिज़्क़ में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया और उसके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत हो। तो जब दो घर मिलते हैं, दो फ़र्द मिलते हैं, आपका रिज़्क़ आपके हिस्से का भी आपको आ रहा होता है और उसके हिस्से का भी आ रहा होता है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने आके अर्ज़ की
कि या रसूलल्लाह मेरी रिस्क पूरा नहीं होता, हुजूर ने फरमाया शादी कर लो। उसने दोबारा फिर आया, या रसूलल्लाह रिस्क कम है, फरमाया फिर शादी कर लो। फिर आया, फिर उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम ने बात, यानी इससे हमें ये बात समझ में आती है, एक हिजरत और एक शादी, ये बेसिकली स्पोर्टिव थिंग्स हैं टू इंक्रीज द रिस्क, हमारे रिस्क में अगर इजाफा करना चाहते हैं। और फिर इसके बाद औलाद, यानी बेटा आता है, वो अपना रिस्क लेके आता है। मैं तो एक जुमला बोला करता हूँ कि बेटा हो या बेटी, ये इंसान के लिए एटीएम कार्ड है। वाह वाह वाह, ये एटीएम कार्ड है। जैसे जैसे औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, बेटी अता फरमाता है, आप इस बात को खुद जज कर लें कि जब आप अकेले थे तो आपके वसाइल क्या थे, बीवी आई तब आपके बिल्कुल क्या सही कह रहे हैं रिसोर्सेज आप, बने, बिल्कुल और सही जब कह रहे हैं औलाद हुई तो तब क्या रिसोर्सेज बने। बिल्कुल 100%। रिसोर्सेज में इजाफा होता जाता है। ये इंसान को समझ नहीं आती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के लिए नए नए असबाब, नए नए रिसोर्सेज पैदा करता जाता है। तो नौजवान नस्ल को, आज की नौजवान नस्ल को ये पैगाम है कि वो अपनी ज़िंदगियों को समझे, जहाँ कहीं वेयर एवर यू आर, ट्राई एफर्ट करते रहें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, हार्ड वर्किंग करते रहें, ले मैन बन के ना रहें, लेकिन साथ इस अमल को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। शादी में इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो इंसान की निगाह पाक हो जाती है, इंसान का दिल पाक हो जाता है, इंसान को हया नसीब होती है, इंसान ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मकसद बना लेता है कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, मैंने अपनी बीवी का की वेलफेयर का ख्याल करना है, मैंने एक ख़ानदान बिल्ड करना है। बिलाल भाई, बिल्कुल ठीक। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो तभी कायम हो सकती हैं जब कोई रिश्ता इज़्दवाज में मुनसलिक हो। बहुत खूब वगरना नहीं फरमाया हो आपने। सकता। बिल्कुल इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें कि इंसान को लाइफ में एक ट्रैक मिल जाता है,